السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کالیشورم ڈاکیومنٹری بہت جلد منظر عام پر لاؤں گا، میرے رہنے تک KCR خاندان کانگریس میں داخل نہیں ہوگا، ریونت ریڈی کی چٹ چیٹ۔ کالیشورم کمیشن کے روبرو سابق وزیر اعلیٰ KCR حاضر، کمیشن کے 18 سوالات کے جوابات دیے، کمیشن کے دفتر کے روبرو قائدین اور کارکنوں کا ہجوم۔ ریونت ریڈی نچلی سطح کے وزیر اعلیٰ، کابینی قلمدان تقسیم کرنے کے اہل نہیں، نچلی سطح پر توجہ دینے کے بجائے حکومت کے وعدوں پر توجہ رکھنی چاہیے، KTR کی پریس کانفرنس۔ اور شیخ پیٹ کی ایک ہوٹل میں فرقہ پرست عناصر کی توڑ پھوڑ، رائے درگم پولیس کی کارروائی، اشرار گرفتار، کار ضبط۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ وہ جب تک رہیں گے اس وقت تک کانگریس میں سابق وزیر اعلیٰ KCR اور ان کے خاندان کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ دہلی میں میڈیا سے چٹ چیٹ کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاست کا KCR خاندان ہی اصل دشمن ہے۔ انہوں نے میڈیا کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کابینہ میں توسیع میں قلمدانوں کی تقسیم کے بارے میں کوئی تبادلہ خیال نہیں کیا گیا۔ حیدرآباد واپس ہونے کے بعد سب سے بات کر کے قلمدانوں کی تقسیم کا فیصلہ لیا جائے گا۔ کرناٹک میں طبقاتی سروے کے بارے میں اعلیٰ کمان سے تبادلہ خیال کیا گیا۔
वजीर आला ने कहा कि कालेश्वरम पर 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कालेश्वरम डॉक्यूमेंट्री को मंजर-ए-आम पर लाएंगे। मरकजी हुकूमत में किशन रेड्डी तेलंगाना के लिए रुकावट बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी एक प्रोजेक्ट के लिए किशन रेड्डी फंड्स हासिल नहीं कर सके। साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की पीसी घोष कमीशन के रूबरू पेशी के मौके पर बीआरएस कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद जमा थी। बीआरएस कारकुनान केसीआर और बीआरएस की जय और सीएम डाउन डाउन के नारे लगा रहे थे। बीआरएस सदर और तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव चारशंबे को पीसी घोष कमीशन के रूबरू पेश हुए। चारशंबे को दोपहर 11:30 बजे केसीआर बीआर के भवन पहुंचे। साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव चारशंबे की सुबह तकरीबन 9:30 बजे इरावली में वाक़ अपनी रिहायशगाह से निकले और तकरीबन 11 बजे बीआर के भवन पहुंचे। घर से रवानगी के वक्त केसीआर के बाजू पर इमाम जामिन भी बांधा गया था, जबकि उनकी दख्तर के कविता भी वहां मौजूद थीं। केसीआर के साथ तकरीबन 9 अफराद को बीआर के भवन में दाखिल की इजाजत दी गई थी। पार्टी के सीनियर कायदीन टी हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली, टी पद्मराव गौड़ और दीगर कायदीन केसीआर के हमराह थे। ताहम केसीआर तनहा जस्टिस पीसी घोष कमीशन के रूबरू पेश हुए। वो अपने साथ मुख्तलिफ दस्तावेजात पर मुश्तमिल फाइल्स का एक सेट थामे हुए थे, जिसे वो कमीशन के हवाले करेंगे। केसीआर की पेशी के तनाजुर में बीआर के भवन के रूबरू बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे और भवन के अतराफ 200 मीटर तक इम्तनाई पाबंदियां आयद कर दी गई थीं। ताहम बीआरएस के सैकड़ों कारकुनान और कायदीन ने इमारत की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों पर कब्जा कर रखा। अगरचे बीआर के भवन की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को बेमिसाल हिफाजती इंतजामात के तहत बंद कर दिया गया था, लेकिन केटीआर की ज़ेर क़यादत तकरीबन तमाम रास्तों से बीआरएस कैडर इलाके में पहुंच गया। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर भी आदर्श नगर के एमएलए क्वार्टर्स से एक बड़े हुजूम की क़यादत करते हुए बीआर के भवन पहुंचे थे। कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदियों के सिलसिले में कायम करदा जस्टिस घोष कमीशन के रूबरू साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव हाजिर हुए। बीआर के भवन में जस्टिस पीसी घोष ने उनसे तफसीली सवालात किए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की दोबारा डिजाइनिंग, बैरेजेस की तामीर, मुआहदे, कालेश्वरम कॉरपोरेशन के क़याम और पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुताल्लिक़ कई उमूर पर उनसे पूछताछ की गई। केसीआर ने कमीशन की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए और कमीशन को 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से मुताल्लिक़ तफसीलात और दीगर मालूमात शामिल हैं। तकरीबन 50 मिनट तक चंद्रशेखर राव कमीशन के रूबरू हाजिर थे। इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में अब तक जस्टिस पीसी घोष कमीशन ने 114 अफराद से पूछताछ की है। इब्तिदाई तौर पर कमीशन ने महकमों के आला ओहदेदारों और तामीरी इदारों के नुमाइंदों से पूछताछ की थी। मेडीगुड्डा बैरेज की धंसने और अनरम नदीला बैरेजेस से पानी के अखराज के पस मंजर में मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सुबुकदोश जज जस्टिस पीसी घोष की क़यादत में रियासती हुकूमत ने अदालती जांच कमीशन कायम किया था। कमीशन ने अब तक तामीरी माहिरीन, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन महकमों, क्वालिटी कंट्रोल, ऑपरेशन और मेंटेनेंस, आबी वसाइल और फाइनेंस के आला हुक्काम के बयानात कलमबंद किए हैं। इनसे हल्फिया बयानात भी हासिल किए गए और इन पर जराह भी मुकम्मल की गई है। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली पी राजेश्वर रेड्डी का उस वक्त पैर फिसल गया जब केसीआर कालेश्वरम कमीशन के सामने हाजिर होने जा रहे थे। उनको फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। कमीशन के सामने हाजिर होने के बाद बीआरएस पार्टी सदर केसीआर ने हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी इयादत की। पी राजेश्वर रेड्डी की सेहत से मुताल्लिक केसीआर ने डॉक्टर से मालूमात हासिल की। केसीआर के हमराह बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना के महकमे आबपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीधर के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए।
श्रीधर करीमनगर जिले के CAD डिवीजन 8 में चेप्पाडंडी के SRSP कैंप दफ्तर में खिदमात अंजाम दे रहे थे। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने आबपाशी प्रोजेक्ट्स के कामों के दौरान गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए जमा किए। ACB की टीम ने हैदराबाद, करीमनगर और बेंगलुरु समेत मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त 12 मकामात पर तलाशी ली। बेंगलुरु में 4, हैदराबाद में 6 और दीगर मकामात पर छापे जारी हैं। तलाशी का दायरा श्रीधर के रिश्तेदारों, उनके बेटे और करीबी साथियों तक वसी किया गया है। ACB ने श्रीधर को करीमनगर से हिरासत में लेकर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है। तहकीकात जारी हैं और जल्द मजीद तफसीलात सामने आने का इम्कान है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी एक निचली सतह के वजीर आला हैं, हुकूमत चलाने की काबिलियत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KCR तेलंगाना की तारीख है। KCR को तलब करके आबपाशी के बारे में बात करने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल उसी तरह है कि हनुमान के सामने बंदर का उछल कूद करना। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी में वज़रा के कलमदारों की तकसीम करने की ताकत नहीं है। KTR ने कहा कि कालेश्वरम के अलावा और मजीद कितनी भी साजिश कर लें, कितने भी मुकदमात दर्ज कर लें, ये सिर्फ 6 गारंटियों के वादों से अवाम के जहनों को मुंतशिर करने किया जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ जिदोजहद की जाएगी। रेवंत रेड्डी की इस निचली सियासत पर तवज्जो दिए बगैर हमको हुकूमत के वादों पर नजर रखनी चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट के विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम के बगैर 2 करोड़ 80 लाख टन की धान की पैदावार होती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम से रियासत को मकरूज बनाया गया, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम की तामीर पर हर किस्म की गलतियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को सिर्फ 40 लाख मेट्रिक टन चावल काफ़ी है, इसके बावजूद ज़्यादा पैदावार की जा रही है। मरकज़ी हुकूमत के पास धान का ज़ख़ीरा काफ़ी है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी में उनकी अच्छी इज्जत थी, लेकिन कालेश्वरम प्रोजेक्ट की वजह से उन्होंने BRS पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि झूठ पर मबनी रिपोर्ट देने की वजह से मरकज़ी हुकूमत ने मंजूरी दी है। गांधी भवन में दूसरे दिन अवामी नुमाइंदक के साथ मुलाकात प्रोग्राम में वजीर जंगलात कोंडासुरेखा ने अवाम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कोंडासुरेखा ने कहा कि 109 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें राशन कार्ड, इंदिरम्मा मकानात से मुतालिक शिकायत ज़्यादा मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि अवाम मसाइल से मुतालिक शिकायत को मुतल्लिक़ा महकूमजात के अहदेदारों से बात करते हुए उनकी एकसुई के इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने वज़रा पर भरोसा किया है। उन्होंने मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की एकसुई करने का तयक़ुन दिया। मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर E. अनिल ने कहा कि बीजेपी के लीडर R. कृष्णैया BC तबके को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल से BC तबके के लिए जदोजहद कर रहे हैं, फिर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हासिल नहीं कर सके। BC तबके को आबादी के तनासुब से उनको हक देने के लिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डाला है। राहुल गांधी की वजह से बीजेपी ने तबकाती सर्वे कराने का ऐलान किया है। इस बात को R. कृष्णैया को कबूल करना होगा। R. कृष्णैया अगर संजीदा हैं तो मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालकर BC रिजर्वेशन को नवे शेड्यूल में शामिल करें। अगर ये नहीं कर सकते तो कांग्रेस पर तनकीदें करना बंद कर दें। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन महबूब नगर के हलकों को 49 से बढ़ाकर 60 करने कमिश्नर बलदिया की जानिब से जारी करदा हलकों की नई ज़मराबंदी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सख्त मुखालिफत की। सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद अब्दुल हादी की क़यादत में मजलिस के ज़िला और टाउन कायदीन के एक वफ़द ने कमिश्नर बलदिया से मुलाकात की और नई हल्काबंदी पर एतराज़ करते हुए इसको फ़िरका परस्त जहनों की कारस्तानी करार दिया। उन्होंने बताया कि अक़लियतों की गालिब आबादी वाले हलकों को तोड़कर दीगर इलाकों में ज़म किया गया है, जबकि अक्सरियती आबादी वाले हलकों को महफूज पनाहगाह बनाया गया है। उन्होंने हल्क़ेवारी असास पर तहरीरी एतराज़ात पेश करते हुए हल्क़ेबंदी को माक़ूल बनाने,
उसकी आबादी, जोग्राफियाई हैसियत और दीगर उमूर को मद्देनजर रखने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर नई हल्काबंदी के मुसवदे पर नजरसानी नहीं की गई तो वो सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इस पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करके अवामी और अदालती सतह पर इस हल्काबंदी को चैलेंज करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खां ने बलदिया के अहदेदारों के हमराह आगापुरा में वीडीसीसी रोड के तामीराती कामों का मुआयना किया, जिसकी लागत 12 लाख रुपए बताई जाती है। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन और दीगर मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायद मुकर्रर मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में हल्का असम्बली बहादुरपुरा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन बलदिया जहानुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने बताया कि 52 लाख रुपए की लागत से अली नगर और इसके आसपास के इलाकों में वीडीसीसी रोड बिछाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वो तमाम ज़ेर-इल्तिवा कामों को जल्द पूरा करेंगे ताकि अवाम को राहत हो। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मसाजिद सिर्फ नमाज व दीगर इबादतों तक महदूद न रहें, बल्कि ये मिल्लत की समाजी, माशी, अखलाकी सरगर्मियों की भी आमाजगाह बने, जिसके जरिए नई नस्ल को तैयार किया जा सके। इन ख्यालात का इजहार उलमा इकराम और दीगर मदू कायदीन ने मस्जिद टेक नामपल्ली के गरमाई कैंप के जलसे तकसीम असनाद व इनामात के मौके पर किया। मस्जिद के तहत चलाए जाने वाले गरमाई मदरसे इक़रा तालीमुल कुरान के ज़र एहतमाम गरमाई तातीलात के दौरान कुरान, दीनियात, लेडीज़ टेलरिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर ट्रेनिंग के कोर्सेज के तकरीबन 400 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चियों ने तकमील की। सदर दारुल क़ज़ा उल इफ्ताह मौलाना मुफ्ती सादिक़ मोहिउद्दीन फ़हीम ने सदारत की। मस्जिद की तौलियत कमेटी के सदर मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार निगरान जलसा थे। मोतमद मजलिस उलमाए दक्कन मौलाना सैयद इब्राहीम हुसैनी सज्जाद पाशा, सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्ला हुसैनी, सदर नशीन माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल, माहिर तालीम खलीलुर रहमान, मजलिस के कॉरपोरेटर जफर खान ने असनादात और इनामात तकसीम किए। सदर नशीन इंडियन एम्बेसी स्कूल जद्दा डॉक्टर मोहम्मद सलीम, डॉक्टर निज़ामुद्दीन को उनकी नुमाया खिदमात पर तहनीत पेश की गई। तौलियत कमेटी के ज़रिए दीगर ओहदेदारान और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने भी इस जलसे में शिरकत की। एसओटी एलबी नगर पुलिस ने अब्दुल्लापुर में पुलिस के ताउन से बैन रियासती ड्रग्स के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने पी केशवराव और जयराम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमीन रियासत आंध्र प्रदेश और रियासत उड़ीसा से बराह हैदराबाद बेंगलुरु को ड्रग्स मुंतकिल करते थे। मुलजमीन हैश ऑयल कम कीमत पर खरीद कर 10 गुना ज्यादा फायदा लेकर हैश ऑयल फरोख्त किया करते थे। मुलजमीन को बेंगलुरु के खरीदार से 20 किलो ऑयल का ऑर्डर मिला, जिस पर उन लोगों ने कृष्णा नामी शख्स से आंध्र प्रदेश के जिले अलूरी सितरामराजू के पास से हैश ऑयल खरीद कर हैदराबाद के नवाही इलाके में से फरोख्त करने के लिए पहुंचे। पुलिस को इसकी तल्ला मिलने पर वो आउटर रिंग रोड के पास खरीदार का इंतजार कर रहे थे कि पुलिस ने छापा मार कर उनको पकड़ लिया और उनके कब्जे से 20 किलो हैश ऑयल, 1 मोबाइल फोन और 870 रुपए नगद रकम बरामद कर ली। पुलिस को हैश ऑयल सप्लाई करने वाले कृष्णा की तलाश है। एक अच्छा इन्फॉर्मेशन में वर्कआउट करके एक इंटरस्टेट गैंग को अरेस्ट किया। वो दीज गैंग मेंबर्स वो उड़ीसा से लिंक रख के आंध्र प्रदेश अलूरी डिस्ट्रिक्ट से ये गांजा से बना हुआ हॉश ऑयल 40 केजी गांजा के केमिकल एक्टिविटी में करने के बाद 1 केजी हॉश ऑयल मिलेगा। सो दिस इज ऑलमोस्ट वर्थ 800 केजीज ऑफ गांजा। तो ये मिलने के बाद 20 केजी ऑफ हॉश ऑयल को बेंगलुरु को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जब हमको इन्फॉर्मेशन थे ये एक्टिविटी हो रही है बोल के, तो उनको हम अब्दुल्लापुर मेट में अरेस्ट किया। ये पूरा सीजर 1 करोड़ 20 लाख का है। इससे पहले हम 13.5 करोड़ सीज किया और दैट वाज हाईएस्ट प्रीवियसली। नाउ वी हैव सीज्ड 20 kg of hot This is the highest in the state so far, seizure wise. And this also
ये करने में वो नेटवर्क को भी ब्रेक किया हम लोग। बेंगलुरु में कौन खरीद रहे और उड़ीसा से किधर से आ रहे और आंध्र प्रदेश में कौन सप्लाई कर रहे वो ये पूरा ट्रांसपोर्ट कर रहे बोल के उनको इन्फॉर्मेशन अभी मिल गया। विद दिस ब्रेक थ्रू और दूसरा इन्वॉल्व एक्टिविटीज को भी हम अरेस्ट करेंगे और सप्लाई को भी पूरा कट करेंगे। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हदूद शेखपेट में फिरका परस्त अनासिर ने मंगल की शब एक होटल और पान शॉप में तोड़फोड़ की और नाजिबा नारे लगाकर फरार हो गए। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत रायदुर्गम पुलिस इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एफआईआर में 4 अफराद के नामों के अलावा दीगर का जिक्र किया गया। पुलिस के मुताबिक शेखपेट में वाकया चाय चस्का होटल पर अशरार 2 कारों में सवार पहुंचे और होटल में तोड़फोड़ की, सामान को नुकसान पहुंचाया और होटल का शटर गिरा दिया। इसके बाद पान की दुकान में तोड़फोड़ की और जय श्री राम की नारे लगाते हुए फरार हो गए। पुलिस को इत्तला मिलने पर अशरार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक एसओटी कायम की और अशोक, संदीप, नवीन को गिरफ्तार किया, जबकि प्रवीण के अलावा दीगर अफराद जिनका एफआईआर में जिक्र है हुनूस मफरूर हैं। पुलिस ने अशरार के कब्जे से 2 के मिन जुमला एक फॉर्चूनर गाड़ी को जब्त कर लिया। सीसीटीवी कैमरों का मुशाहिदा करते हुए अशरार के खिलाफ 8 संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। इंस्पेक्टर रायदुर्गम CH वेंकन्ना ने बताया कि यह वाकया फिरकावाराना नौयत का है। शरपसंदों ने फिरका परस्ती की बुनियाद पर यह कारस्तानी की है। उन्होंने बताया कि इस वाक़े में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शादी के 4 साल बाद भी औलाद न होने पर एक खातून असली तरीके के इलाज के जरिए मां बनने की ख्वाहिश लिए हॉस्पिटल गई, लेकिन वो मां तो नहीं बन सकी, अलबत्ता उसकी लाश घर वापस आई। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में पेश आया। पुलिस और मरहुमा के रिश्तेदारों का कहना है कि जिला खम्मम से ताल्लुक रखने वाली 29 साला पल्लवी हैदराबाद के कोंडापुर में प्लान बी फर्टिलिटी हॉस्पिटल में इलाज करवा रही थी। मंगल की सुबह पल्लवी को उसके घर वालों ने हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसके रहम में वाटर बबल्स हैं और फौरी तौर पर ऑपरेशन की जरूरत है। कुछ वक्त बाद हॉस्पिटल इंतजामिया ने बताया कि सर्जरी कामयाब रही है और बिल वसूल कर लिया गया। ताहम कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने घर वालों को इत्तला दी कि पल्लवी को दिल का दौरा पड़ा है और वो चल बसी। पल्लवी की मौत की खबर से रिश्तेदारों में शदीद गम और गुस्सा फैल गया और उन्होंने हॉस्पिटल के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही गच्छी बावली पुलिस मौके पर पहुंची। केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े सुभाष नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फोन पर मुसलसल बात करने पर वालिद ने बेटी को डांट दिया, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर इंटरमीडिएट की तालिबा 19 साला तेजस्वी ने खुदकुशी कर ली। घर में तन्हा होने पर उसने फांसी ले ली। वाक़े के बाद पेट बशीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। आसिफ नगर पुलिस ने डकैती के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उसने सैयद रेहान और एक जोनाइल को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 8 और 9 जून की दरमियानी शब ज़ेबाबाग आसिफ नगर के इलाके में चाकू बताकर शिकायत कुनिंदा का मोबाइल फोन छीन लिया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से मुलजिमीन की शनाख्त करके उन्हें 11 जून को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से मसरूखा मोबाइल फोन बरामद कर लिया और मुलजिमीन को अदालती तहवील में देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। डीसीपी साउथ ईस्ट जोन की पुलिस ने चाकू लेकर आजादाना घूमने वाले एक रॉडी शेटर को 30 दिन के लिए जेल की सजा दिलाई। तफसीलात के मुताबिक 9 जून को एक मामूली से वाक़े पर फूलबाग इलाके के रहने वाले रॉडी शीटर शेख हाशिम अली, जो चाकू लेकर मुश्तबा हालत में जा रहा था, उसे चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने पकड़कर अदालत में पेश किया, जिस पर मजिस्ट्रेट ने उसे 10 जून को 30 दिन के लिए जेल भेज दिया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक
और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माबिन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कालेश्वरम डॉक्यूमेंट्री बहुत जल्द मंजर आम पर लाऊंगा। मेरे रहने तक केसीआर खानदान कांग्रेस में दाखिल नहीं होगा। रेवंत रेड्डी की चिट चैट। कालेश्वरम कमीशन के रूबरू साबिक वजीर आला केसीआर हाजिर। कमीशन के 18 सवालात के जवाबात दिए। कमीशन के दफ्तर के रूबरू कायदीन और कारकुनों का हुजूम। रेवंत रेड्डी निचली सतह के वजीर आला, काबीनी कलमदान तकसीम करने के अहल नहीं। निचली सतह पर तवज्जो देने के बजाय हुकूमत के वादों पर तवज्जो रखनी चाहिए। केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और शेख पेट की एक होटल में फिरका परस्त तनासर की तोड़ फोड़। रायदुर्गम पुलिस की कार्रवाई, अशरार गिरफ्तार, कार जब्त। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यहीं पर इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।